ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کلاس نمبر 123 ہے ہماری، پارہ نمبر 13، اور سورہ رات کا آغاز ہو چکا ہے۔ آیت نمبر انشاءاللہ 17 سے 20 تک کور کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزلہ، اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً پانی، فسالت، تو بہ نکلی، اودیتن، وادیا، بقدرہا، اپنے اندازے سے، فاحتملہ، تو اٹھا لیا، السیل، سیلاب نے، زبدن، چڑھا، راوین، چڑھا ہوا۔ اب یہ یوں مثالیں پچھلی آیات میں دیکھنا کہ نشانیاں تھیں، تو اب اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ اب امیجن کریں کہ بارش پڑ رہی ہے، اور اب پانی کا پریشر اتنا ہے کہ اس میں جھاگ بن رہا ہے۔ ہوتا ہے نا، جب پانی کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے تو پھر جھاگ بن جاتی ہے۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو یوقدون، وہ جلاتے ہیں، علیہ، اس پر، فی النار، آگ میں، ابتغاء، حاصل کرنے کو، حلیۃ، زیور، او یا متاع، برتن، زبدن، جھاگ ہے، مثل، اس کی جیسا، یعنی جو دھاتو کو جب پگھلا کے میلٹ کر کے جو اس کو بھی پروسیس سے گزارا جاتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ کذالک، اسی طرح، یضربو، بیان کرتا ہے اللہ الحق، حق کو، والباطل، اور باطل کو۔ اب ایک یہ مثال ہے، فاما، تو رہا، الزبد، جھاگ، فیذهب، تو وہ چلا جاتا ہے، جفاء، ناکارہ ہو کر۔ اب یہ یوں مثال ہے کہ انزل من السماء، وہی نازل ہو رہی ہے، تو یعنی سنت قرآن نازل ہو رہا ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، اور اودیتن، یعنی دل مراد ہے یہاں سے، کہ اپنے پیغمبر پر رسول اللہ تعالیٰ وہی نازل کر رہے ہیں، حق نازل کر رہے ہیں، لیکن جس کے دل میں جتنا شوق ہے، فاحتملہ، تو وہ اتنا ہی اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس دل میں جتنا علم کا شوق ہے وہ علم اتنا ہی اٹھا رہا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور یہاں پر ایک دھاتو کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، جیسے کہ جب سونے کو علم کے درجات ہوتے ہیں نا، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ایک تو علم ہوتا ہے کہ آپ آئے اور بیٹھے اور سنے اور چلے جائیں، ایک ہوتا ہے کہ نہیں، آپ اس میں پھر تدبر کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جد و جہد کرتے ہیں۔ اسی طرح جب بھی کوئی سونا اگر بنانا ہے یا کوئی بھی دھاتو بنانا ہے تو اس کو ایک تپش سے گزارنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حق اور باطل کی مثال ہے۔ اور وہ اما ما ینفع، اور لیکن جو نفع دیتا ہے الناس، لوگوں کو، فیمکث، تو وہ ٹھہر جاتا ہے، فی الارض، زمین میں۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ندیاں تو مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی دھاتوں میں بھی بہت ساری اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ندیاں بھی کدھر جا کے مل جاتی ہیں؟ سمندر میں۔ سمندر بھی فائدہ دیتا ہے، اور جو اصل دھاتو رہتا ہے وہ بھی فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح جو انسان حقیقی علم حاصل کرتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، اور پھر وہ اس طرح زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ اب زمین میں ٹھہرنے سے مراد یہی ہے کہ ایک تو وہ سکھانے کی وجہ سے، تو جو علم اس کے عمل میں آتا ہے تو پختگی اس کو علم کی مل جاتی ہے۔ کذالک، اسی طرح، یضرب، بیان کرتا ہے اللہ الامثال، مثالیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو پوائنٹ ہے نا، وہ اما ما ینفع الناس، جو فائدہ دے گا وہ کیا ہوگا؟ اس کو زمین میں اللہ تعالیٰ جما دیں گے، یعنی اس کو فائدہ ملے گا اپنے علم سے بھی، یعنی جو خود علم حاصل کرے گا اس کو دوسروں کو بھی سکھائے گا، تو وہ اس کے اندر جمع آ جائے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے سمندر، جیسے کوئی دھاتو، اور جو نہیں فائدہ دے گا اسی کی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پہ بیان کر دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں اس لیے بیان کری ہیں تاکہ ہم سوچیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں، یا کوئی دھاتو کی جو اوپر جھاگ ہوتی ہے، یا ندیوں پہ جو جھاگ ہوتی ہے وہ ہے، کیونکہ وہ جھاگ تو آگے بڑھتی جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، ہوا چلتی ہے اور جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا علم کی کیٹیگری ہے ہماری، یا پھر اس علم کی کیٹیگری یہ ہے کہ نہیں، ہم ایک دھاتو اسٹرانگ ایلیمنٹ چیز بنے ہوئے ہیں کہ دوسروں کو بھی فائدہ دے رہے ہیں۔ للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے استجابو، قبول کیا، حکم، لربہم، اپنے رب کا، الحسنی، بھلائی ہے، والذین، اور جن لوگوں نے لم، نہیں، یستجیبو، قبول کیا، لہو، اسے، لو کاش، انا، کے ہوتا، لہم، ان کے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ، اور اسی کے مانند، معہ، ساتھ اس کے، لفتدوا، البتہ وہ فدیہ میں دے دیتے بھی اس کو، یعنی جس نے تو حق قبول کر لیا تو وہ تو اب حشر کے میدان میں لائی کا سودا کر رہا ہے، اور لیکن جس نے نہیں کیا تھا دنیا میں حق قبول،
वो झाग ही बना रहा था, वो गहरा पानी नहीं बना था, धातु नहीं बना था। तो फिर वो अब चाहेगा कि अपनी जान बचाने के लिए अपना जितना भी मालो मता है, जितने भी लोग हैं, वो सबको अपने फिदिया में दे दे और अपनी जान छुड़ा ले। लेकिन ये उसको फायदा नहीं देगा। उलाई का यही लोग हैं, लहू के लिए है सूउल हिसाब, बुरा हिसाब। वो मअवाहुम जहन्नम, और ठिकाना है उनका जहन्नम। वो बिअसल मिहाद, वो बुरी और बुरा ही उनका ठिकाना है। फिर आगे अफमन, क्या फिर जो यालमु जानता है, अन्नमा के बेशक जो उनजिला उतारा गया इलैका तरफ आपके, में रब्बी का आपके रब की तरफ से, अल हक हक है, कमन उसके मानिंद है, हुआ वो आमा जो अंधा है। यानी एक देखने वाला और एक अंधा क्या बराबर हो सकते हैं? इसी तरह की एक जो हक को जानता है, जिसे पता है कि ये हक है, और एक वो जो अंधा है इस बात से, क्या वो बराबर हो सकते हैं? इन्नमा बेशक इदा करू नसीहत पकड़ते हैं उलुल अलबाब अक्ल वाले। एक ट्रेंड में ही बोला जाता है ना कि बहुत देखे हैं कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले। और इतना तो हमें भी पता है क्या होता है क्लास में जाने से, हमें भी आता है पढ़ना। वही मिसाल है ये कि जिसे पता है कैसे पढ़ना है और क्या वो पढ़ रहा है, और जिसे सिर्फ कुछ नहीं पता है, तो क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? उन दोनों का लेवल बराबर हो सकता है? अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि ये नसीहत किसके लिए? जो अक्ल रखती है। अल्लादीना वो लोग जो, अभी अकल वाले लोग कौन है? वो लोग जो यूफूना पूरा करते हैं भी अहदिल्लाह, अल्लाह के अहद को, वला और नहीं यनकुज़ूना वो तोड़ते हैं अलमीकात, पुख्ता अहद। अल्लाह से भी किया हुआ अहद पूरा करते हैं और बंदों से भी किया हुआ अहद पूरा करते हैं। वल्लदीना और वो जो यसीलूना जोड़ते हैं, माँ उसकी जो। अब यहाँ पर और मजीद सिफात बताई जा रही हैं अकल वालों की, देखने वालों की। उसको जो अमरा हुक्म दिया अल्लाह, अल्लाह ने भी, जिसका अन के यूं सला वो जोड़ा जाए, वो यकशाउना और वो डरते हैं, रब्बहू अपने रब से, वो यखाफूना और वो डरते हैं, सू अल हिसाब बुरे हिसाब से। यानी वो रिश्तों को जोड़ने वाले हैं, ठीक है, और वो अपने रब से डरने वाले हैं, और वो बुरे हिसाब से भी डरते हैं। ये उनकी क्वालिटीज हैं किनकी? जो उलुल अलबाब हैं, जो आयात से, मिसालों से नसीहत पकड़ते हैं। तो ये उनकी क्वालिटीज हैं। अब आप इसको यूं कह लें बात को कि वो लोग ही नसीहत पकड़ते हैं जो अहद की पासदारी करने वाले होते हैं, जो सिला रहमी करने वाले होते हैं, जो खुदा खौफी रखने वाले होते हैं। खुदा खौफी के अंदर हमारे अकवाल भी आ जाते हैं, अमाल भी आ जाते हैं, यानी हमारी स्पीच भी क्लियर हो जाती है जब खुदा खौफी हो जाती है। और वो बुरे हिसाब से भी डरते हैं, यानी उनको वो अपना मुहासबा भी करते रहते हैं। और क्या सिफातें हैं उनकी? वल्लदीना और वो जिन्होंने सब्र किया, इब्तिगा चाहने के लिए, वजह चेहरा, रब्बीम अपने रब का। अब देखें, सब्र की क्वालिटी बता रहे हैं कि ये जो यूफूना भी अहदिल्लाही है और यसिलूना है, या अल्लाह का खौफ है, तो ये सब चीजें क्या डिमांड करती हैं? ये इंसान से पेशेंस ही तो डिमांड करती हैं। जिसके अंदर पेशेंस होगा तो वो ये काम खुद कर रहा होगा, वो सब्र के साथ वादे की भी पासदारी कर रहा होगा, वो सब्र के साथ रिश्तों को भी निभा रहा होगा। और इब्तिगा चाहने के लिए, वजह चेहरा, रब्बीम अपने रब का, व अकामू और कायम किया सलात नमाज, व अनफकू और खर्च किया मिम्मा उसमें से जो रज़क़नाहुम रिस्क दिया हमने उन्हें, सिर्रन वशीदा व अलानियतन और जाहिर, व यदरऊना और वो दूर करते हैं, बिल हसनती साथ भलाई के, अस्सय्यअती बुराई को। अब ये क्वालिटीज, यानी जब वो सब्र का मामला कर रहे हैं तो किसके लिए? खालिसतन अल्लाह के लिए। यानी वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो नियत है वो उनके खालिस अल्लाह के लिए है। और मजीद क्वालिटी क्या है कि वो नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ने वाले हैं, और वो खर्च भी करने वाले हैं, छुप कर भी और एलानिया भी। और वो क्या करते हैं जब कोई बुराई का मंजर कोई पेश आता है उनके सामने, कोई इंसिडेंट होता है, तो उसको वो भलाई से दूर करते हैं। उलाई का यही लोग हैं, लहुम उनके लिए, उकबदार अंजाम घर आखिरत का। और मजीद भी है, जन्नातु बागात हैं, अददिन हमेश ही के, यानी अल्लाह ताला उनको मजीद क्वालिटीज क्या दे रहे हैं, और मजीद इनाम जो उन्होंने इतनी मेहनत की दुनिया के अंदर सब्र के साथ। अदनिन हमेशगी के, ये दुखुलून वो दाखिल होंगे उनमें, वमन और जो कोई सलह नेक हुआ, मिन आबाइहिम उनके आबाओ अजदाद से, वो अजवाजिहिम और उनकी बीवियों में से, वो दुर्रियातिहिम और उनकी औलाद में से, वल मलाइकतु और फरिश्ते, यदखुलूना वो दाखिल होंगे, अलैहिम उन पर, मिन कुल्ली बाब हर दरवाजे से। यानी अल्लाह ताला उनको जन्नत में भेजेंगे, और
क्योंकि कोई भी खुशी हो इंसान की, वो उसके परिवार के बगैर नामुकम्मल ही है, वो मुकम्मल ही नहीं होती। अगर कोई हमें अचीवमेंट मिल जाए और उस अचीवमेंट पर खुश होने वाला कोई साथ में नहीं हो, तो वो हमें पता ही नहीं, हम सेलिब्रेट करें किसको, किसको बताएं, कोई अगर सुनने वाला ही नहीं है हमारी बात। तो इसी तरह जब जन्नत में इंसान जाएगा तो ऑब्वियस बात है, अब उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, वो चाहेगा कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। और लेकिन अगर उसकी फैमिली नहीं हुई तो इसलिए अल्लाह ताला बता रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक ये भी कह रहे हैं कि जो भी नेक हुआ, जो अच्छा होगा उसके अपने पेरेंट्स में से, उसकी अपनी वाइफ्स या स्पाउस में से, उसके अपने चिल्ड्रंस में से, जो भी नेक होंगे वो उसके साथ होंगे। तो इनडायरेक्टली यूं कह लें कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि इनकी भी साथ साथ तबलीग या तरबिया हमने करनी है, साथ साथ इनके साथ भी इस्लाह रहमी का और दावा का काम करते रहना है हिकमत के साथ, जिससे कि ये भी जब हम जन्नत में जाएं तो ये भी साथ में जन्नत में जाएं, क्योंकि अकेले जन्नत नहीं जाया जाएगा जब कोई वहां पर सेलिब्रेट करने के लिए ही नहीं होगा, क्योंकि इंसान को फैमिली जो है हमेशा चाहिए होगी। और फरिश्ते भी फिर उनके पास दाखिल होते हैं, वो क्या कहते हैं, सलाम सलाम अलैकुम तुम पर, बिमा बवजह उसके जो सब्र, तुम सब्र किया तुमने, पनिअमा तो कितना अच्छा है, उकबरदार अंजाम आखिरत के घर का। यानी वो दाखिल हो रहे होंगे और सलाम कर रहे हैं, और किसके ऊपर, किस क्वालिटी के ऊपर, सब्र की क्वालिटी के ऊपर। क्योंकि जितने भी मामलात होते हैं हुकूकुल अल्लाह में या हुकूकुल इबाद में, वो सब्र के साथ ही तय पाते हैं। विदाउट सब्र सब चीजें बिखरी ही रह जाती हैं। जब बंदा सब्र करता है, यानी सब्र का ताल्लुक हर स्किल के साथ है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट की स्किल देख रहे हैं तो उसका ताल्लुक भी सब्र के साथ है, यानी आप एक सब्र के साथ एक चीज को, रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, सब्र के साथ आप सिला रहमी करने की कोशिश कर रहे हैं, सब्र के साथ आप नमाज पढ़ रहे हैं, और तमाम मामला आप सब्र की, यानी सबकी जो रूट है वो सब्र है, तो सब्र की ही रूट के ऊपर फरिश्ते जो हैं थपथपी देंगे। अब इसी के बरस सिचुएशन वल्लदीना, और वो लोग जो यनकुज़ूना तोड़ते हैं अहदल्लाहि अहद को, अल्लाह के, मिन बादी बाद मीसाक़िही उसके पक्का करने के, वो यक़तऊना और वो काटते हैं, माँ उसको जो अमर अल्लाह हुक्म दिया अल्लाह ने भी है जिसका, अय्यूसला कि वो जोड़ा जाए, वयुफ़सिदूना फिल अर्ज़ि और वो फसाद करते हैं जमीन। उलाए का यही लोग हैं, लहुम उनके लिए अल्लाह लानत है, वलहुम और उन्हीं के लिए सूउद दार बुरा घर है। अब यहाँ पर बरक्स क्वालिटी बताई जा रही है। अब आप यूं करें कि इसको चेकलिस्ट में डालें अपने, कि पहली आयत जो आई, जो इसकी बरक्स थी, उसमें देखें कि कौन कौन सी क्वालिटीज मैच हो रही हैं और कौन से वीक हैं, किसको कितने पसंद लेना चाहिए। और इसमें भी देखें कि कहीं हम तो नहीं है ना इस क्वालिटी में, पता रहमी वाले मामले में, या फिर जब पता रहमी होती है तो उसका आउटकम फिर फसाद निकलता ही है, कि जब हम किसी का लिहाज, किसी की हम कोई भी एहतराम नहीं करते तो फिर फसाद मचता ही है। और अल्लाह कह रहा है कि ये जो अमल है ना, ये किस चीज का सबब बनता है, लानत का सबब बनता है और उसके बुरा ठिकाने का सबब बनता है। तो यूं कह लें कि सिला रहमी अगर हम कर रहे हैं तो ये हम उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं कि अपने साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े रहें, हम ये अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर अपने ऊपर एहसान नहीं करेंगे सिला रहमी करने का तो हम लानत के मुस्तहिक हो जाएंगे, और लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से दूरी। वो तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अल्लाह की रहमत हमसे दूर हो जाए। अल्लाह अल्लाह यबसुतु फैलाता है, अर्रिस्क रिस्क को, लिमन जिसके लिए ये शाह वो चाहता है, वयक़दिर और वो तंग कर देता है, वफरिहो और वो खुश हो गए, बिल हयात दुनिया जिंदगी पर, दुनिया की, वमल हयात दुनिया और नहीं जिंदगी दुनिया की, फिल आखिरत आखिरत के मुकाबले में, इल्ला मगर मता एक हकीर चीज। ठीक है, यानी इंसान के पास चाहे हुकूकुल अल्लाह की बारी हो या हुकूकुल इबाद की बारी, अगर उसके पास वक्त नहीं होता तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह वैसा ही होती है, माल की हिर्स ही होती है। अल्लाह ताला उसी की तरफ लेके आ रहे हैं कि अल्लाह ही तो है जो मालिक रासिक है, जो चाहता है और जिसको चाहता है एक हिसाब से देता है और जिसको चाहता है तंग कर देता है। और जो लेकिन दुनिया में ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि जिसको अल्लाह दे देता है तो वो खुश हो जाता है, तो वो दुनिया की ही जिंदगी पे राजी हो जाता है और अपने आप को इतना मशगूल कर लेता है कि ना तो उसको हुकूकुल अल्लाह की
फरागत रहती है, ना हुकूकुल इबाद की फरागत रहती है। यानी वो अपने लिए खाली वक्त रखता ही नहीं, हर वक्त अपने आप को बिजी रखता है। तो फिर अल्लाह कह रहे हैं कि ये वाली जो जिंदगी है आखिरत के मुकाबले में एक हकीर सी चीज है। यानी अगर इस दुनिया को ही संवारने में सारी एनर्जी जा रही है तो ये तो एक बहुत ही सी चीज है और एक घाटे का सौदा है। वो यकोलू, और कहते हैं अल्लाज़ीना, वो लोग जिन्होंने कफरु कुफ्र किया, लौला, क्यों नहीं उन्जिला, उतारी गई अलैहि, इस पर आयतुन, निशानी में रब्बी ही, उसके रब की तरफ से। अब ये अहले मक्का की तरफ इशारा है इनडायरेक्टली, फिर हमारी तरफ। अहले मक्का का यही तरीका था कि बार बार मुतालबा कि आप पर क्यों निशानी नहीं कोई आती है, आप इसको पहाड़ पे सोने का करते, जैसे कि हमने पिछली आयत में देखा था कि इनके मुख्तलिफ ही मुतालबे होते थे। कुल कह दीजिए, इन्ना, बेशक अल्लाह, अल्लाह, युदिल्लु, भटकाता है, मैं यशाओ, जिसे वो चाहता है, वयहदी, और वो हिदायत देता है कि इलैहि, अपनी तरफ, मन अना, जिसको वो जो रुजू करे। यानी तुम्हारे ये सिर्फ तकाजे करने से भी, तुम्हें अगर निशानी दिखा भी दी जाए तब भी कुछ नहीं होना, क्योंकि हिदायत और गुमराह करने का जो है वो अल्लाह ने ही अपने जिम्मे रखा है, क्योंकि तुमने मानना नहीं है। क्योंकि अल्लाह जानते हैं, अल्लाह ने क्योंकि शक्ल कमर भी करके दिखाया, कि चांद भी दो टुकड़े हुआ, ये सब कुछ इनको करके दिखाया, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं माने, तो क्या मानेंगे, कितनी और निशानियां इन्हें चाहिए। अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनु, ईमान लाए, वतत्मइन्नु, और मुतमईन होते हैं, कुलूबुहुम, दिल उनके, बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र, अला, खबरदार, बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से, तत्मइन्नु, मुतमईन हो जाते हैं, अल कुलूब, दिल, अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनु, ईमान लाए, वअमिलुस सालिहाति, और उन्होंने अमल किए नेक, तूबा, खुशहाली है, लहुम, के लिए, लहुस्न मआब, और उम्दा ठिकाना है। यानी जो ईमान लाते हैं और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन हो जाते हैं, तो ये भी एक चेकलिस्ट अल्लाह ने दे दी। क्या हमारे दिलों को राहत महसूस होती है कुरान सुनकर, अल्लाह का जिक्र करके? और इसमें तमाम तरह की इक़साम है अल्लाह के जिक्र, चाहे तस्बीहात की शक्ल में हो, नमाज की शक्ल में, कुरान की शक्ल में, दुआ की शक्ल में, या अल्लाह का जिक्र करने की शक्ल में। तो क्या जब अल्लाह का जिक्र आता है, दीन की बात आती है, तो दिल पुरसुकून होता है कि घबराता है? और वो जो ईमान लाते हैं और नेक अमल भी करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनको खुशहाली तौबा देते हैं, यानी खुशहाली, और उनका ठिकाना जो है वो बेहतरीन है। कजाली का, और इसी तरह अरसलना का, भेजा हमने आपको, फी उम्मतिन, किसी उम्मत में, कद तहकीक, खलत मिन कबलिहा, गुजर चुकी इससे पहले उम्म, कई उम्मतें, यानी आपको जो भेजा है कोई नया काम नहीं हुआ है। इनको अगर हैरानी लग रही है कि कैसे कोई पैगंबर आ गया, तो ये कोई नया काम नहीं हुआ है, ये तारीखी काम है। यानी ये पहले भी उम्मतें गुजर चुकी हैं, वहां भी अंबिया कराम आते थे, वहां भी नबियों को उतारा जाता था, जो क्या करते थे, लितत्लुआ, ताकि आप पढ़ें, अलैहिम, उन पर, अल्लाह दी, वो जो हाइना, औ हाइना, वही की हमने इलैहि का तरफ आपके, वहुम, और वो यकफुरूना, कुफ्र करते हैं, बिर्रहमान, रहमान का। यानी ये जो नबियों का काम था, ये सबका था, कि वो अल्लाह की नाजिल करदा जो हिदायत होती थी वो अपनी कौम को बताते थे और उनकी रहनुमाई करते थे, तौहीद की तरफ लेकर आते थे। तो ये जो हैरान हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है हैरान, इनके बराबर में ही से बहुत सारे नबी गुजरे हैं, तो ये काम जो जो हुआ है नया नहीं हुआ है। और आपका जो मकसद है वो क्या है, कि जो वही की गई है वो इनको पढ़ के सुनाओ, यानी इनकी इनके लिए तबलीग करो। लेकिन जो कुफ्र करने वाले हैं वो क्या कहते हैं, रहमान का ही इनकार कर देते हैं। कुल कह दीजिए, हुआ वो रब्बी, रब है मेरा, ला, नहीं, इलाहा, कोई इलाह बरहक, इल्ला, मगर हुआ वही, अलैहि, उसी पर, तवक्कल तो, तवक्कुल किया मैंने, व इलैहि, और तरफ उसी के, लौटना है मेरा। यानी ये कुफ्र करते हैं रहमान का, तो इनके कुफ्र करने से तो कुछ नहीं होता ना रहमान। तो अल्लाह जो है उनसे कह दीजिए कि अल्लाह मेरा रब है, इसका कोई भी बरहक नहीं है, यानी उसके साथ कोई भी नहीं है, यानी वही बरहक है, कोई इला उसके साथ मशहूर नहीं है। और तवक्कुल फिर किस पर ही करना है, अल्लाह ही पर, और उसी की तरफ फिर लौटना है। यहाँ पर अगर गौर करें ना, हिदायत किसको मिलती है, वयहदी इलैहि मन अनाब, जो उसकी तरफ रुजू करता है, यानी जो उसकी तरफ
लौट कर आता है, बार बार लौटता है, अल्लाह ताला उसी को हिदायत देते हैं। और जो नहीं लौटता, यानी कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जिनसे हम बात करते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं, यानी उनका रहमान के जिक्र में दिल नहीं लगता और वो चिढ़ जाते हैं और अना में आ जाते हैं। तो हिकमत यही कहती है कि ऐसे लोगों के साथ बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके जरिए एक तरीके से अल्लाह की नाफरमानी कर देते हैं, कुफ्र के मुस्तहिक भी हो सकते हैं। वो इस तरह से कुछ होते हैं कि चिढ़ जाते हैं, हर हदीस का इनकार कर रहे होते हैं बिना जाने बिना तहकीक के। तो ये वाली चीज तो फिर ऐसे लोगों को फिर हिदायत भी नहीं देते हैं, क्योंकि हिदायत किन्हें देते हैं? जो अल्लाह की तरफ लौटते हैं और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते हैं और अपने मामलात को अल्लाह ही की तरफ लौटाते हैं। आज की आयत हमारी यही थी, और एक चेकलिस्ट के थ्रू हमारी एक आयत थी कि हमने गौर करना है कि जा किधर रहे हैं ना। अल्लाह ने बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ से पांच जो है अल्लाह ताला ने जो अल्लाह का हुकूकुल अल्लाह हुकूकुल इबाद को निभाने वाले हैं और जो नहीं निभाने वाले हैं, दोनों की एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने दे दी। और जो नहीं निभाने वाले हैं उसका जो मेन पर्पस होता है, अगर दुनिया होता है तो दुनिया तो बहुत हकीर सी चीज है, और बहुत खूबसूरत तरीके से ये बता दिया। और हमने देखना है कि क्या हमारा दिल जो है अल्लाह के जिक्र के साथ मुतमईन रहता है, यानी सिर्फ इसी तरह तो खाकों में नहीं डिवाइड किया हुआ कि अपने आप कुरान पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते हैं तो सुकून से रहते हैं, लेकिन जब किसी और के मुंह से सुनते हैं तो चिढ़ जाते हैं और अच्छा नहीं लगता। या किसी मजलिस में जाते हैं, अल्लाह का जिक्र नहीं होता है तो खुश रहते हैं, और जब अल्लाह का जिक्र होता है तो बोरियत सी होने लग जाती है। तो ये हमारी चेक लिस्ट है कि हमने अपना मुहासबा करना है, क्योंकि जो जिनको अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहे हैं और जिनको सलाम अल्लाह फरिश्ते देंगे, जन्नत की खुशखबरी है, तो वो क्या करते हैं? वो अपना मुहासबा भी करते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कल के हिसाब से। आज की आयत यहीं तक थी हमारी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।